جواد حسین انصاری کی رہائش گاہ الفضل ٹاؤن پھلیلی پر ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ایڈوکیٹ بشیر احمد سٹھار کے اعزاز میں استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسد بھائی اور جواد انصاری صاحب اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بھی یہ پروگرام ارینج کیا ہے ہمارے رجسٹریشن کے میں ان کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی، ہمیں یہاں بلایا۔ جہاں تک کہانی ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اکیلا آدمی جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک ٹیم ورک نہیں ہے۔ تو آپ میری ٹیم ورک ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی علاقے کے مسائل ہیں، مثلاً کہ جیسے اسکول ہیں، اسکول کے اندر جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں اور اپنا ڈسپنسری ہاسپٹل ہے وہاں کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم خود بھی ان کو دیکھیں گے اور وہاں کے وہ مسائل جو بھی ہے وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے ہیومن رائٹس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا اور ہم ایک دوسرے محبت پیدا کرنا، اور اس شہر میں جو بھی اختلافات کہیں بھی علاقے میں ہو رہے ہیں ہم ان کے اختلافات کو ختم کر کے اس امن اور بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنا ہمارا بنیادی جو ہے نا یہ مقصد ہے۔ سیکنڈ جو پروٹیکشن، جیسے کہ پورا نام میں بتاتا چلوں کہ ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن، اس کا مقصد ہے امن برقرار رکھنا۔ کہیں بھی وائلیشنس ہو رہی ہیں، کہیں بھی اختلافات ہو رہے ہیں تو ہم اس وائلیشن کو دور کریں تاکہ وہ وائلیشن آگے چل کے زخم جیسے ہوتا ہے ناسور بنتا ہے تاکہ وہ ناسور نہ بنے۔ اسی طرح پروٹیکشن، اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے کسی کے اوپر یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم لیگلی طور پر، قانونی طور پر ہم اس کو پروٹیکشن دلائیں، چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو چاہے وہ ایک عام آدمی کی طرف سے ہو۔ اور جو علاقے کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں، مثلا ڈیوریج سسٹم ہے یا تو پھر جو مسائل چیئرمین صاحبان جو آج کل بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں، تو ہم اس آواز کو بھی جو نا ہم آگے لے کر جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ آج کل بچوں کا اغوا کا ایک بہت بڑا ایک فقدان چل رہا ہے اور بچے اغوا ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک آدمی نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، ان کو کہا کہ بھائی میں بچوں کا ایک پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، بچوں کو ایک اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا جب آپ گھر سے نکلو تو پہلی تو بات ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نکلو، اگر نہیں تو آپ جب نکلو تو انون پرسن کوئی چیز بانٹ رہا ہو یا کوئی چیز دیتا ہو تو آپ مہربانی کر کے ان سے کوئی چیز نہیں لیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ کے پیچھے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کوئی آدمی میں کوئی جانتی بھی نہیں ہو تو ہمارے پیچھے تو آپ اپنے ٹیچر کو بتاؤ، یا اگر آپ گھر کی طرف جا رہے ہو تو اپنے پیرنٹس یا والدین کو بتاؤ تاکہ فوراً اس بندے کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے۔ بشیر سٹھار صاحب نے اٹھایا ہے ہیومن رائٹس کا پیس اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے۔ مین مشن تو یہ تمام جو سماجی لوگ ہیں ان کا بھی یہی ہے، جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بیسکلی تو جو سماجی لوگ ہیں ان کا مقصد ہے اپنے لوگوں کی پروٹیکشن۔ جو کمزور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بااثر لوگ ہیں وہ تو اپنے لوگوں کے کام نکال جاتے ہیں، لیکن جن کا کوئی والی وارث نہیں، کمزور لوگ، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تھانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کا کوئی پریشان حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک کمزور آدمی علاقے میں اس کے علاقے کی نالی تک صاف نہیں ہوتی، ان کے بچوں کی ایڈمیشن نہیں ہوتی، یہ مین مسائل ہیں ہمارے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ بیسکلی ہمارے لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسکول میں ایڈمیشن کرا سکیں۔ ہمارے لوگوں کے پاس NIC کارڈ نہیں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک شناخت نہیں ہے جو پاکستانی کی بیسکلی شناخت ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ جو ویژن لے کے بشیر سٹھار صاحب آئے ہیں، ہم پوری افرادی قوت کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، کیونکہ ہمارا ویژن بھی وہی ہے، اپنے لوگوں کی پروٹیکشن اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ تو ہم بھرپور طریقے سے یہ چاہیں گے کہ سٹھار صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر ایڈوکیٹ بشیر احمد سٹھار نے ہیومن رائٹس کا یہ قدم اٹھایا ہے، تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہو یا پوری
डिवीज़न हो उसके लिए मुफीद है, क्योंकि उसका आज़म ये है कि गरीबों के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जैसे अभी उन्होंने आपको असद भाई ने बताया कि चेयरमैन से आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन का बहुत प्रभाव है, और उसके लिए हमारा पहला कदम यही होगा कि हम तालीम के इदारों को सुधार लाएं, और जो हेल्थ के हवाले से भी हमारे चेयरमैन साहब का यही कहना है कि उसके लिए भी हमारा पहला एक्शन होगा। सो इंशाल्लाह हर कदम पे हम अपने पाकिस्तान की और अपने मुल्क की आवाम के साथ है, और उनके लिए हर कदम यही कि उनको जो भी बुनियादी हुकूक है वो दिला सके, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, जो भी मसले मसाइल है उनमें हम उनका साथ देंगे। इनको मैं ये पैगाम दूंगी कि आप हमारे चेयरमैन साहब के हाथ मजबूत करें ताकि वो आपकी मदद करने में उसको आसानी हो। आप निकले और आप देख रहे हैं कि अपने यूसियों में आपकी कोई कदर नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्टों में आपकी कोई कदर नहीं है, आप एक नेक इंसान आपकी मदद के लिए निकला है, उसका हाथ मजबूत करें और उसकी हर कदम पे साथ दे ताकि इंशाल्लाह वो आपकी मदद कर सके। मेरा यही पैगाम है। एक बैत के साथ, वो अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। इस कारवां को मजबूत करें और अपने हाथों में हाथ मिला के अहद करते हैं कि हम अपने चेयरमैन को हर कदम पे कामयाब करें। चेयरमैनों के फंड भी बहुत है, चेयरमैन के पास भी फंड बहुत है। मैंने आज तक नहीं देखा इतना फंड जो मिला है इनको, मगर इस्तेमाल नहीं होता। इस मुल्क के अंदर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पर सबको अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है, मगर इन यहाँ के लोगों ने, बड़ेरों ने, जागीरदारों ने, इलेक्शन लड़ने वालों ने, बड़े बड़े उन्होंने छोटा बड़ा कर दिया। कोई छोटा बड़ा नहीं है। मसले मसाइल बहुत हैं, पैसे वाले मसले मसाइल हल कर लेते हैं, गरीब लोगों के मसले तो सुनने का तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। जहाँ इलाका बनता है तो वहाँ एक स्कूल अच्छी किस्म की बन जाती है, हॉस्पिटल अच्छा बना जाता है, यहाँ दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहे। हमने एक ताराचंद अभी चेक किया और तो लिखा जिल का डॉक्टर था वो 10 बजे आता है, 1 बजे नमाज पे चले जाते हैं, 1 बजे के बाद वो 2 बजे आते हैं तो उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। 500 रुपये फीस लेते हैं। ये कमी है हमारे अंदर, इनमें नहीं। हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मैं आप लोगों भाइयों को, बच्चे बैठे हैं ज़्यादा, कि मेरे भाई इत्तेहाद बनाएं। मैं अपनी उसमें बताऊंगा जो हमने काम किए। सेंट्रल जेल के अंदर हमने हॉस्पिटल मदरसा खोला, वहाँ हमने विजिट किया। आईजी सिंध को बुलाया, पानी नहीं था। बड़ी शर्म की बात है, वहाँ जाके हमने पानी भी ठीक किया। एक जेल के अंदर हम गए, वहाँ पर तो कुत्ते पानी पी रहे हैं, वो मर्द पानी पी रहे हैं। वहाँ दीवारें बड़ी करी हमने, वहाँ हमने मदरसा बनाया। जो बहने बच्चियाँ हॉस्पिटल वहाँ सेंट्रल जेल बंद थी, आईजी सिंध ने बड़ी हमारा साथ दिया, मगर कुछ सियासत के अंदर वहाँ हमने मदरसा खोला। दोस्तों को हम सियासी नहीं है, एक बंदा आपके साथ जेन्युइन बंदा है, इसलिए हम भी चल रहे हैं। एक दर्द दुख सुनने वाला बंदा है, काम करने वाला बंदा है। बशीर सेठार साहब ने, मैं अभी काम को बताऊँगा, अभी वहाँ बता दूँगा, अभी एक बच्ची को कत्ल कर दिया था। उसको वो लोग गए थाने SHO के पास, उसने कहा बाबा घर पे देखो नहीं है, भूसड़ी की बच्ची थी। बोले जाओ घर पे जाओ, तो वहाँ चेक करो। तमीज़ नहीं है बात करने के लिए कि पब्लिक लाखों रुपया रिश्वत लेते हो और पब्लिक के साथ तुम पब्लिक के लिए बैठे हो। मगर क्या है कि एक तना आदमी, तना मत रहो, ये शहर के अंदर एक हो जाओ। वो कोई भी पार्टी हो, हमारी गैर सियासी पार्टी है भाई, हमारा हम खुद ताजिर हैं। बशीर साहब एडवोकेट है, इनके साथ बहुत एडवोकेट है, उनके साथ उनको भगा दिया। वो रोता रहा अपना, इसी तरह बशीर सेठार के साथ आए। फिर हमने बैठे, बात की। वो SHO जब भी सुनने को तैयार नहीं था। बोले यार अभी देखकर तलाश की। फिर बशीर सेठार ने अपना असर वसूल अपना दिखाया, तो हमने SSP के सामने जाके एहतजाज किया। वो एहतजाज फिर SSP ने कहा भाई आप एहतजाज ख़त्म कर दो, तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा एहतजाज अब नहीं ख़त्म होगा। हमने रोड नहीं ब्लॉक किया था, एहतजाज ब्लॉक किया। बोला मैं आपके साथ बैठ के बात करता हूँ। फिर उन्होंने बशीर सेठार साहब को फ़ोन किया, 3 दिन के अंदर मैं कातिल कर दूँगा। हमने कहा इनको कि 3 दिन के बाद कातिल नहीं मिला तो हम 5वें दिन यहीं होंगे। और आज देख लो अक्सरियत,
इससे ज़्यादा अक्सरियत होगी। उन्होंने 3 दिन ही लगाए ऐसे ने रात और दिन और रात बुला के चेयरमैन बशीर सरकार साहब को बुला के वो कातिल मिल गई। वो कातिल कौन थी? घर की ही मामी थी, लेडीज थी, उसी की कातिल थी। तो भाई आज हमें यकजहती करनी है, अपने आप को संभालना है। आप इस इलाके के अंदर किसी एक शख्स को पूरा कर दो और यहाँ पानी भी देखो, बिजली भी देखो, यहाँ पर लोगों को यहाँ इंशाअल्लाह ताला इलाके के अंदर फंड तो होता ही नहीं है हमारे पास, हम तो कैसे हंसी है, मगर जो भी हमसे ताउन होगा हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं। जिस हाल में भी हैं, हम जिस तरीके से भी हैं, जिस हाल में हम आपके साथ हैं। हम बशीर सरकार साहब हमारे चेयरमैन हैं, आप मिलजुल के हिम्मत करें, मेहनत करें, अल्लाह हमारी और आपकी मदद। ये तारीखी प्रोग्राम है। जब भी हमारे तंजीम के हवाले से स्टोरी लिखी जाएगी तो पहला इस्तकबालिया आपके इलाके का और आपके दोस्तों के नाम भी लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर नौजवानों को देखकर मेरा जज्बा और बढ़ गया है, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि हमारे नौजवान आगे आए, क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं भी इनकलाब आया है तो नौजवानों के ही बदौलत से आया है। ये नौजवान इस मुल्क के सरमाया हैं, इस धरती के बाशिंदे हैं। ह्यूमन राइट यानी कि इंसानी हकूक, इदारा बराए इंसानी हकूक। अब आप माशाल्लाह सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं कि इंसानों के हकूक क्या हैं और हमें हमारे साथ या इंसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो जानवरों से भी कहीं ज्यादा किया जा रहा है। मुझे याद है कुछ दोस्तों ने हमें इसी तरह एक प्रोग्राम किया था, अमान शाह कॉलोनी लतीफाबाद नंबर 11। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक टैंक पानी का जो पूरे उस इलाके को सप्लाई कर रहा है उसके थ्रू वहां जा रहा है, तो वहां पर जब मुझे वहां लेके गए तो मुझसे पहले वहां कुत्ते खड़े थे और वो टैंक जो है वो ऊपर छत उसकी टूट चुकी है और उसके जो जाल है वो नजर आ रहे हैं। उन बेचारों ने वहां पर उसके ऊपर कुछ शामियाना या कुछ कपड़ा ढापा हुआ है। बहरहाल कहने का मकसद जब उन्होंने मुझे खोल के दिखाया तो मैंने जब देखा कि आप यकीन करें कि इंसान तो इंसान क्या, जानवर इसको किस तरह पी रहे हैं और वो इंसान पी रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन का दौर आता है और ये आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्तेमाल हमें कर रहे हैं, घर अपने बना रहे हैं। जो फंड है इनसे पूछा जाए, 5 लाख रुपया फंड है। अभी एक चेयरमैन को 5 लाख रुपया फंड दिया जा रहा है। आप देखें क्या काम हुआ है और ये फंड कहाँ जा रहा है। अगर ये काम किए भी जा रहे हैं तो अपने मन पसंद ठेकेदारों को ये ठेका दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछो तो ये कहा जाता है भाई आप कौन हो, तो किस हैसियत से आप पूछते हो। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ और ये आप दोस्तों को भी मैं इल्म में लाना चाह रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे लॉ का पता है। एक गधे गाड़े वाला एक सीपर भी पूछ सकता है, एक चेयरमैन से तो क्या मेयर से भी पूछ सकता है। 19A के तहत के जो भी वायलेशन हो रही है, जो भी मसले हो रहे हैं, वो एक सीपर, एक गधे गाड़े चलाने वाला एक आम आदमी भी पूछ सकता है और वो लॉ के अंदर क्लियर है कि आप उसके जवाबदार हैं। लेकिन क्या है, यह तबकाती निजाम है, यहाँ तबकाती निजाम है, यहाँ हैसियत देखी जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और एक आदमी अगर एफएस पे जा रहा है तो उसकी वो रिस्पेक्ट है, एक मेहरान पे जा रहा है वो उसकी वो रिस्पेक्ट है, एक तिजारों पे जा रहा है उसकी वो रिस्पेक्ट है। यहाँ तबकाती निजाम है और हमें जो तबाह किया है इस तबकाती निजाम ने तबाह किया है। बहरहाल मैं ये कहूँगा इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। जब
یہ جو بڑی بڑی سیٹوں پر کمشنر بیٹھے ہیں یا دیگر بڑے بڑے پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، کیا ہم یا ہماری اولاد اس پوسٹ پہ نہیں آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد کو تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں چاہیے